ना घर में घुस के पूरा आग लगा दिया। इधर साइड हम लोगों का ये मतलब घर के पीछे एक घर है, उस घर में पूरा आग लगा दिया। 3 घर मतलब पूरा आग लगा दिया है। पूरा लूटपाट किया है। घर के महिला के साथ भी मतलब कि बहुत ये किया है। हम लोगों का घर, ये लोगों का मकान वकान सब कुछ जला दिया। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟವರ ಕಣ್ಣು ಕೀಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೊದಲು ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನು, ಬಳಿಕ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಚಿವ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆದಿದ್ದು 3 ಬಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೇ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆದಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಂಗಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಂಗ ISF ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತ ನೋಡದೆ ಅವರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 7 ಪೊಲೀಸರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟವರ ಕಣ್ಣು ಕೀಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು, ಯಾವ ಸಂಸದ? ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ನಡುವೆಯೇ TMC ಸಂಸದರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಮಥುರಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ TMC ಸಂಸದ ಬಾಪಿ ಹಲದರ್, ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಆಸ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಜ್ಜ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಹೊಣೆ ನಿಮ್ಮದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಹೌದು. ಯಾರಾದರೂ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಕೀಳಿ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. একটা মুর্শিদাবাদে আজকে একটা ছোট্ট সমস্যা সেখানে হয়েছে। সকলের কাছে করজোড়ে অনুরোধ করব, দয়া করে আইন কেউ হাতে তুলে নেবেন না। প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, আপনার বাবা দাদাদের অবস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আপনাদের তেমন আমাদের সকলের। ওয়াকফ সম্পত্তি কারোর বাপের সম্পত্তি নয়। ওয়াকফ সম্পত্তি একটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায় তার চোখ যেমন উবড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন, একথা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে বলতে পারি। সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায় তার চোখ যেমন উবড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন, একথা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে বলতে পারি। সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায় তার চোখ যেমন উবড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন, একথা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে দায়িত্ವ দিয়ে বলতে পারি। ಏನು ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ನ ಅಸಹಾಯಕ ಮುಗ್ಧ ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದುರ್ಬಲ ಹೇಡಿ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೀಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮೊದಲು ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನು, ಆ ಬಳಿಕ ಸಂವಿಧಾನ ಹೀಗಂತ ಒಬ್ಬ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸಚಿವ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮೊದಲು ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನು ಮುಖ್ಯ, ಆ ಬಳಿಕ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸಚಿವ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆದಿದೆ. ಭಾರತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद बने इस वक्फ संशोधन कानून के विरुद्ध जिस प्रकार की चित्र विचित्र और अनाप शनाप बातें पिछले दिनों में इंडी गठबंधन की सरकारों और नेताओं के द्वारा की जा रही है, वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। यदि कर्नाटक के मंत्री ये कहते हैं कि हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे, यदि बंगाल में इस प्रकार की बात उठ रही और झारखंड के एक मंत्री तो इस सीमा तक चले गए कि उन्होंने कहा कि उनके लिए संविधान से ऊपर शरिया है, तो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि देश की जनता की आंखें खोल दी है उन्होंने कि ऐसे लोगों के हाथ में रहने पर सरकार यदि रहती है तो भारत का संविधान खतरे में है। क्योंकि बहुत स्पष्ट हम ये कहना चाहते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तीनों स्तर की सरकारों का शक्तियों का निर्धारण है। कोई भी जिला पंचायत राज्य विधानसभा से पारित कानून के बाहर नहीं जा सकती, कोई राज्य सरकार केंद्र के द्वारा पारित कानून के बाहर नहीं जा सकती। उसके बाद यदि वो इस प्रकार की बात करते हैं तो इसका अर्थ हो गया कि वो संविधान को जेब में रखते हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और NDA संविधान को दिल में रखते हैं। तो ये मुकाबला संविधान को अपनी जेब में रखने वाले लोग और संविधान को अपने हृदय में रखने वाले लोगों के बीच में है।
और आज यदि वो इस प्रकार की बात करते हैं तो बाबा साहब के संविधान का तो अपमान कर रहे हैं और अपनी सरकार के द्वारा पारित वह संविधान संशोधन जो कांग्रेस सरकार ने पारित किए थे 73वें और 74वें, जिसको उन्होंने क्रांतिकारी कहा था, उसको वो ध्वस्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यदि झारखंड के मंत्री ये कहते हैं कि उनकी नजर में शरिया संविधान से ऊपर है, तो हम तो बहुत साफ कहना चाहते हैं कि आज बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए का यह संकल्प है कि हमारे लिए संविधान का सम्मान सबसे ऊपर है। अब मैं इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी से साफ पूछना चाहता हूं कि आपकी नजर में बाबा साहब का संविधान ऊपर है या शरिया का निशान ऊपर है? ये आपकी उस कार्रवाई से साफ हो जाएगा कि आप झारखंड में ऐसे तत्वों पर और जो लोग बोल रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई करते हैं नहीं। यदि नहीं करते हैं तो यह साफ हो जाएगा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर में बाबा साहब के संविधान से ऊपर शरिया का निशान है। हमें इसका जवाब स्पष्ट रूप से हां या नहीं में और आपके द्वारा की गई प्रतिक्रिया में दिखना चाहिए। सर, कहना है कि अगर तो उनकी सरकार आती है भविष्य में तो 1 घंटे के अंदर ये कानून बदल देंगे। खड़गे साहब कहते हैं कि बीजेपी की तरफ इशारा करके कि ये लोग संविधान के और बाबा साहब के दुश्मन हैं। इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं। देखिए, बाबा साहब के उनके जीवन काल में कौन दुश्मन था, ये बात अनेक तथ्यों में और साहित्यों में भरी पड़ी है। जिन लोगों ने बाबा साहब को चुनाव हरवाने में और धांधली करके चुनाव हरवाने में प्रमुख भूमिका अदा की, मैं आज बाबा साहब की जन्म जयंती पे बताना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपना पहला चुनाव 14,000 मतों से हारे थे और 78,000 वोट इनवैलिड किए गए थे। 3 जनवरी 1952 को उनका चुनाव हुआ था। अप्रैल 1952 में उन्होंने चुनावी धांधली के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर की थी। अतः भारत के संवैधानिक इतिहास में चुनावी धांधली के पहले शिकार बाबा साहब अंबेडकर थे, जो चुनावी धांधली कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने मिलकर उनके साथ की थी। अब इमरान मसूद ने जो बोला है यह दर्शाता है यह कांग्रेस पार्टी संविधान को अपनी जेब में रखती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, संविधान में संशोधन कैसे होता है? 1 घंटे के अंदर होता है। हमने तो पूरी प्रक्रिया पूरी की। पहले हम पिछले साल के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाए, फिर संयुक्त संसदीय समिति में गया, उसके बाद महीनों तक विचार विमर्श हुआ, अनेकानेक बैठकें हुई, 25 से अधिक राज्यों और वक्फ बोर्डों से विचार विमर्श हुआ। अनेक जगहों पे जाकर फिजिकली उन्होंने, जेपीसी ने जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में डाटा एकत्र किया। 92 लाख लगभग फीडबैक्स लिए गए। फिर संसद के दोनों सदनों में आया, 12-12 घंटे की चर्चा हुई। उसके बाद राष्ट्रपति महोदया के साइन से या कानून बना। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये सारी प्रक्रिया 1 घंटे में तभी हो सकती है जब आप संविधान को जेब में रखते हो। इससे साफ है इमरान मसूद के बयान से कि कांग्रेस पार्टी की हाथ में संविधान खतरे में है, उनके हाथ में संविधान जेब में है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के लिए संविधान हृदय में है। और आज के दिन जब बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती है, उस दिन कोई कहे कि 1 घंटे में मैं कानून बदल दूंगा, मुझे लगता है बाबा साहब के जन्मदिन के दौरान इसके समय उनके द्वारा बनाए गए संविधान की विस्तृत संवैधानिक प्रावधानों का इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। सर, ममता बनर्जी भी यही कह रही है कि हम अपने राज्य में लागू नहीं, उसकी वजह से बंगाल के हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हो गए हैं। बीएसएफ की टीमें भेजी गई हैं। ममता बनर्जी मंच से कह रही है, एक मुख्यमंत्री जो पारित हो गया है राज्यसभा लोकसभा से। मैं पुनः कह रहा हूं कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था के तहत ममता जी से ही मैं कहता हूं, क्या आपकी अनुमति देंगी कि आपकी कोई जिला पंचायत पश्चिम बंगाल विधानसभा के कानून को न माने? तो कोई राज्य कैसे केंद्र सरकार के कानून को नहीं मान सकता? यह भी साफ दर्शाता है कि इंडी गठबंधन और ममता बनर्जी जी के लिए संविधान का कोई माने नहीं। वैसे मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा, आज ममता बनर्जी जो कर रही हैं ये उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, विवशता है।
क्योंकि अब कट्टरपंथी तत्वों के हाथ में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंधक हो चुकी है। ममता बनर्जी जी के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल उनके शासनकाल में उपद्रवी तत्वों के हाथ से होते हुए अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इसलिए उनका ये बयान देश के लिए बहुत घातक है, पर मुझे लगता है कि आज वो चाह कर भी इसके विरुद्ध जाने का साहस नहीं रख सकते।